نے آخری ڈیٹ دی ہے اور جو سماعت صاحب نے استدعا کی، آپ لوگوں نے جو استدعا کی کہ خان صاحب تک ایکسیس دیا جائے اور ان سے ڈائریکشن نہیں ہے یہ اپیل سننے کے بعد سے خان صاحب کی کوئی اس میں ڈائریکشن نہیں آئی، تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا یہ آخری موقع ہے، اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں یہ خلاف معمول بات ہے. یہ حق ہے عمران خان صاحب کا، بشرا بی بی کا، کہ ان کی جو سزا معطلی کی درخواست ہے اس کو سنا جائے. اس کو رد کرنا ہم سمجھتے ہیں خلاف قانون ہے. 16 ماہ اس درخواست کو زیر التوا رکھا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم چونکہ جو ٹائم ٹیبل ہے عدالت کا اس سے ہٹ کر مین اپیل سن لیتے ہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب اپیلیں آتی ہیں ہائی کورٹ میں تو ہر سال کے مطابق ان کو سنا جاتا ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی اپنی اپیلیں 2023 کی 2024 کی یہاں موجود ہیں. ان اپیلوں کو سنا نہیں جا رہا اور 2025 یا 26 کا جو معاملہ ہے اس کو سماعت کے لیے لگا دیا گیا ہے. تو ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس مقدمے میں آپ کو صورت کیوں ہے جبکہ ان مقدمات میں آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے. وجہ صرف یہ نظر آتی ہے کہ ان مقدمات میں عمران خان صاحب کو بیل ملی ہوئی ہے، ان کی سزا معطل ہوئی ہے. جیل میں وہ صرف اس مقدمے کی وجہ سے ہیں. یہاں بھی اگر سزا معطل ہو جاتی تو وہ باہر آ جاتے. تو ان کی سزا کو معطل نہیں کیا گیا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مقدمہ سنیں گے، مین اپیل سنیں گے، جس میں کئی ماہ کا وقت لگ سکتا ہے اور یہ خلاف قاعدہ ہے. تو ہم اپنے حقوق کا، خان صاحب کے حقوق کا اظہار کرتے رہیں گے، وہ حقوق مانگتے رہیں گے، ان سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے. سر اب ایک نیریٹو چلایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب کیسوں سے بھاگ رہی ہے. بالکل یہ جھوٹی بات ہے. دیکھیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد پورا عدالتی نظام جو ہے وہ تابع ہو چکا ہے، وہ منہدم ہو چکا ہے. ہمیں بالکل یہ نظر آ رہا ہے کہ جو یہ تیزی ہے اس میں ایک کوئی ہے، اس میں عمل ہے. یہ خام خواہ کی تیزی نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ارادہ ہے. تو ہم ارادوں کا شکار نہیں بنیں گے، ہم مزاحمت بہرحال کریں گے. لیکن اس وقت ملک میں حالات یہ ہیں کہ ہر جانب ایک بند گلی ہے، بند دروازے ہیں. ہم نے ان بند دروازوں کا، بند گلیوں کا مقابلہ کرنا ہے، قانونی آئینی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی. کیا وفاقی آئینی عدالت میں بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہے. دیکھیں یہ آپشن موجود ہے کہ جو درخواستیں سزا معطلی کی رد کی گئی ہیں ان کے خلاف ہم وفاقی آئینی عدالت میں بھی جائیں، یہ ممکن ہے. کیس کی سماعت ہوئی ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کے پاس آخری موقع ہے اور اپیل ہی سنی جائے گی. جو آپ نے استدعا کی تھی کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، سماعت صاحب نے استدعا کل کی تھی کہ ملاقات کروائی جائے تاکہ ان سے ڈائریکشن لی جائے، لیکن جج صاحب نے وہ استدعا مسترد کر دی. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آنریبل چیف جسٹس صاحب کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم، امت مسلمہ کے لیڈر 1000 دنوں سے جیل میں ہیں. ہماری پہلی استدعا یہ تھی کہ ان کی سزا معطلی ہو. سزا معطلی کی ہماری درخواست تھی، اس کو پراپر ہیئرنگ نہیں دی. اب اس پہ ہم اوپر جائیں گے. دیکھیں ہمارا بیسک مقصد اس وقت اپیل نہیں ہے. کیسے تو عمران خان کے بے شمار لگائے ہوئے ہیں. اس طرح تو کیسوں میں اگر ہم جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے نکلنے میں. اس وقت ہم سزا معطلی ہمارا مین کنٹینشن ہے، بجائے اس کے کہ آپ سزا معطلی سنیں آپ اپیل پہ ہمیں لا رہے ہیں. اپیل پہ تو ہم آئیں گے، وہ تو ہمارا حق ہے، لیکن سب سے پہلے ہم جو ایک پٹیشن ہم نے دی ہے کہ عمران خان صاحب کی سزا معطلی کا کیس آپ سنیں، کیونکہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں جو ہے اس وقت اس کے اہل نہیں ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے جیل میں رکھیں. یہ جو ہماری پٹیشن ہے وہ انہوں نے نہیں سنی. اب یہ انہوں نے 20 مئی کو جو ہے اس کو ایڈجرن کیا ہے، تو انشاءاللہ اس میں پھر دیکھتے ہیں. لیکن ہماری مین کنٹینشن یہ ہے کہ سزا معطلی ہو. اب تک عمران صاحب کی آنکھ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن اس پہ کوئی سنجیدہ جو ہے وہ عدالت کوئی ریلیف آپ کو نہیں دے رہی. دیکھیں نہ صرف اس پہ کوئی ریلیف نہیں ہے، بلکہ فیصل جاوید صاحب موجود ہیں، یہ بھی اڈیالہ جاتے ہیں. میں پیشی پہ جب اڈیالہ تھا آج کے دن میری وہاں انہوں نے نام ڈالا تھا پارٹی نے، تو میں خود بھی گیا تھا. میں نے اس پیشی میں بھی راجہ صاحب کو، سلمان راجہ صاحب کو اور ہمارے علی بخاری صاحب جو وکیل ہیں خان صاحب، ان کو یہ مشورہ دیا تھا. اور میں آج بھی یہ بات یہاں پہ کر رہا ہوں کہ ہم روز جاتے ہیں، ٹیوزڈے کو فیملی اور وکلا جاتے ہیں، تھرسڈے کو فیملی ممبرز یا اپنا ان کے جو ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ بیسیکلی آج کے دن جاتی ہے. ملاقات نہیں ہوتی. میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جس دن بھی ملاقات نہ کریں اس کے اگلے دن آ کے ہم کنٹمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن موو کریں. کم از کم ہفتے میں 2 کنٹمپٹ کی پٹیشنیں تو ہیں. تو آنریبل چیف جسٹس صاحب سے یہ میرا بصد احترام استدعا ہے کہ آپ کے حکم کو ہم تو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے نا. آپ نے آنریبل چیف جسٹس صاحب کی عدالت کا حکم ہے کہ فیملی کو ٹیوزڈے کے دن اور وکلا کو اور ان کے فرینڈز آف جو عمران خان ہے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ تھرسڈے کو جا کے ملے گی. اب اگر وہ اڈیالہ میں ان کے سپرڈنٹ صاحب نہیں ملنے دیتے، یا جو روڈ پہ ان کے پولیس والے کو ایس ایچ او صاحب ہوتے ہیں، پچھلے ہفتے مجھے بھی روکا تھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس کو امپلیمنٹ ہم کیسے کرائیں. اس کا تو پتہ کرے نا چیف جسٹس صاحب. اپنے فیصلے کا تو اپنی آنریبل کورٹ کی عزت پہ جو ہے وہ حرف آ رہا ہے.
ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और हफ्ते में 2 बार हो रही है और किधर से हो रही है। मैं हैरान हूँ। पिछले हफ्ते मैंने जो वहाँ SHO साहब थे उनसे पूछा भी कि आप किस कानून के तहत एक चीफ जस्टिस के कोर्ट के ऑर्डर को आप रोक रहे हैं। रोड के ऊपर लेजिस्लेटर और वकील खड़े हैं। मेरे पास साथ सलमान राजा थे, ऑनरेबल अली जो है बुखारी साहब थे, हमारे सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब थे, ये क़यादत हमारे साथ वहाँ पे मौजूद थी, कुछ MNA साहिबान मौजूद थे। आप हमें रोड पे रोक रहे हैं, पीछे हमारे ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, ऊपर से आप हमारी सजा मुअत्तली को आपने जो है वो रद्द कर दिया और हमें कह रहे हैं कि आप अपील में आए। मतलब है कि फैसला हमारे हक में आए ना आए वो अलग बात है, आप हमें सुने तो सही। इसलिए मैं हासिल वसूल गुफ्तगू का ये 2 पॉइंट हैं। एक हमारी सजा मुअत्तली, हम उसको चैलेंज करने जा रहे हैं जो उन्होंने यहाँ पे हमें रिजेक्ट किया है, तो तब तक मेरे ख्याल में अपील नहीं सुननी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, जो हाई कोर्ट का हुक्म आता है कि हमारी मुलाकात कराई जाए, तो उसमें अगर वो रोकते हैं तो उस कंटेम्प्ट को ये हेयर करे। वहाँ पे सुप्रीडेंट साहब को, जो वहाँ पे SHO साहिबान हैं या जो पुलिस वाले हैं या उनके जो हाई अप्स हैं, क्योंकि देखिए SHO खुद से तो नहीं कर रहा, तो उनके जो DIG साहब हैं या IG पंजाब है, उनको बुलाया चीफ जस्टिस साहब, उनसे पूछें कि मैं ऑर्डर करता हूँ, आप किस कानून के तहत लोग। कि आप सुबह से यहाँ मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि 20 तारीख आप लोगों के लिए आखिरी चांस है और इसके बाद कोई जो है वो चांस नहीं दिया जाएगा, क्या कहेंगे इसमें? हमें तो चांस जनवरी 2025 में, नहीं वार्निंग क्या, 2025 में जनवरी में ये अपीलें दायर हुई हैं बुशरा बीबी इमरान खान की सज़ाओं के खिलाफ। कब? जनवरी 2025। आज क्या है? मई 2026। 1.5 साल होने वाला है। ये हाल है, इधर खड़े आपके सामने है। वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसकी आला मिसाल है यहाँ पर। तो इमरान खान को तो जेल के अंदर उन्होंने 10 सेंचुरियाँ कर ली अपनी मुकम्मल, 1000 ज़्यादा दिन हो गए और 300 से ज़्यादा उन पे बोगस केसेस हैं सारे। ये तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला हो जाए भाई, 1.5 साल हो गया है। तो अब क्या कहें, यानी कि एक आदमी जो है भी नाहक कैद के अंदर, जिनके ऊपर सारे बोगस केसेस हैं और सबको पता है ये, तो ये हाल है। तो अगर इंसाफ नहीं होगा तो माशरा कहीं आगे नहीं जा सकता। सर आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों के पास मुज़ाहमत है? ओहो, मुज़ाहमत बिल्कुल होनी, लाएमल की ज़रूरत है। एक लाएमल सामने आना चाहिए जिसमें आपकी प्रॉपर टाइमलाइन, डेडलाइन, ऑब्जेक्टिव्स, डिमांड, सारी चीज़ें सामने होनी चाहिए। उसमें फेजेस होते हैं, वो पूरा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसपे आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी करती है, साथ में आपकी एग्रेसिव टॉक्स भी होती हैं। मुफाहमत नहीं कह रहा मैं, वो भी मुज़ाहमत ही होती है। तो दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। तो इसका वक्त आ गया कि उसकी ज़रूरत है। सर PTI के आज़ू को ये नहीं देखना चाहिए कि दुनिया टेबल टॉक पे ईरान और अमेरिका बैठ सकते तो इमरान खान साहब के साथ हुकूमत क्यों नहीं बैठ सकती, या आप लोग क्यों नहीं किरदार अदा करें? इमरान खान ने तो कितनी दफ़ा पैगाम भेजा जेल से, तो क्या हुआ? कोई आगे से कोई चीज़ हुई? कुछ भी नहीं हुई। उसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ बैठी हैं, वो हमारे सारे लोग जो है, शाह महमूद साहब, एजाज चौधरी साहब, मियाँ महमूद रशीद, उमर शरफराज चीमा, बाकी हमारे सारे लोग, आलिया हमजा भी अभी अरेस्ट, सारे लोग जो हैं वो उधर ही हैं। तो आप जब भी होता है, कुछ होता ही नहीं उसमें। तो अगर ऐसे कोई चीज़ हो तो वो सामने आनी चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक प्रॉपर कम्प्रिहेंसिव लाएमल की ज़रूरत है। सर लाएमल कौन फिल 4 पार्टी की लीडरशिप देगी और फिल 4 देना चाहिए वो, ताकि उसके ऊपर काम शुरू हो और सबको यकजा हो कि ये बातें मत करें एक दूसरे के खिलाफ। इससे बिल्कुल तकवीत। इमरान खान ने कई दफ़ा जब मुलाकातें हो रही थी एक बात की थी कि फ़लाँ को कहो कि ये पब्लिक में बात मत किया करे, अंदर किया करे। वो पब्लिक में जाके इतनी टूट फूट, बिल्कुल गलत है ये। यकजा हो के प्रॉपर करे। वो जेल में इमरान खान, वो क्या सोचते होंगे? वो कहते होंगे ये बढ़ रहे हैं, ये कोई हालत है? इसलिए यकजहती की भी ज़रूरत है और एक प्लान की ज़रूरत है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान जो जब बाहर थे जेल में, तो वो किस तरह प्लान करते थे चीज़ों को, बड़े तरीके से बिल्डअप होता था, फेस वाइज चीज़ें होती थी, सामने अपनी चीज़ें सारा लेके चलते थे। उन्होंने हमारे लिए पूरा पहले बताया, मतलब उन्होंने कई बार किया है ये फ्रेमवर्क पूरा, उनसे सीखा हुआ इन सब ने, तो ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर इमरान खान साहब के टाइम इतने इख्तलाफात नहीं होते थे, अब बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। नहीं, उस वक्त भी होते थे, लेकिन इमरान खान साहब बाहर आए तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। वो इमरान खान हैंडल कर लेते थे, लीडर है ना, उन जैसा तो कोई नहीं हो सकता। दूसरा इमरान खान नहीं है कोई, एक ही इमरान खान है। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान एक ही है, और तो कोई नहीं हो सकता।
कितना मिस करें खान साहब? बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है, आपका तो काफी टाइम गुजरा उनके साथ। ज़ाहिर है। मैं 16 साल का था तो तब से मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मैं तो 2.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, इतने से इतने ज़्यादा कोर्ट ऑर्डर्स लिए, अडयाला जेल जाते हैं, मुलाकात नहीं होती, उनसे मुलाकात मिस कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि बस अब जेल से बाहर आए वो, उनसे बनी गाला में मुलाकात हो। बहुत अरसा हो गया। अब देखिए इलाज के हवाले से देखें उनका किस तरह से हो रहा है ये सारा। आज हमें आँख का बड़ा संजीदा मसला, आँख का इतना संजीदा का मसला, बुशरा बीबी माँ, उनके सारा पर्सनल डॉक्टर्स तक रसाई नहीं है, उनकी मौजूदगी शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनका इलाज किया जाए। और डॉक्टर आसिम की मौजूदगी में ये 12 दफ़ा हम यहाँ से कह चुके। जो अरकान असेंबली अडयाला नहीं पहुंचते उनको क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, ये अब जो आते हैं पहले तो उनको मैसेज है वेरी गुड। आज भी आए हैं सेनेटर्स काफ़ी तादाद में, MNAs भी, अडयाला जेल भी मैं देख रहा था इस बारी अच्छे हैं, लेकिन जो नहीं आते वो लाजमी आए हैं। देखें ना आकर, अच्छा जो आते हैं उनको रिकग्नाइज भी करें और जो नहीं आते। और एक और बात, कुछ लोग हैं जो कहते हैं वहां पहुंचो, जल्दी पहुंचो, अडयाला पहुंचो, खुद नहीं पहुंचते। वो कुरान की एक आयत है, उस काम का दूसरों को क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते? तो आप खुद भी प्रैक्टिकली पहुंचो ना, पहुंचो, ग्राउंड पर पहुंचो, वहां से कहो पहुंचे तो और बात होती है। जब खुद ही नहीं पहुंचते तो दूसरों को कैसे? इसलिए सब आएंगे, कतरे कतरे से दरिया बनता है। ये जो ताकत है ये तब आती है जब यकजहती हो, वरना अलग अलग छड़ियों आप स्टिक्स को आप आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन जब वो यकजा होती है तो उनको तोड़ना मुश्किल होता है। अलग अलग मत हो, इकट्ठे हो। हुकूमत कहती है कि हमें PTI में कोई साजिश करने की जरूरत नहीं है, PTI वाले खुद ही काफी हैं अपने आप तहरीक को। इंसाफ के अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो तहरीक इंसाफ खुद ही पहुंचाती है। ये तो ये बात वो ठीक कहते हैं। थैंक यू सर, बहुत से यहाँ पहुँचाइए, लेकिन आपके जो फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं वो कहते हैं बड़ा खर्चा होता है, बड़ा टाइम लगता है यहाँ आते हुए। तो आप कैसे आएंगे? आपके पास तो ना इस वक्त कोई योद्धा है, ना आप किसी योद्धे पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में जो फिरदौस नकवी साहब ने बात की है वो अपनी ज़ात से नहीं की, वो बाकी वर्कर्स के हिसाब से वो कह रहे होंगे कि कैसे वो आ सकते हैं, क्योंकि वाकई इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव और बहुत ही टायरिंग और लंबा सफ़र है। अगर वो बाय ट्रेन आते हैं या बाय कोच आते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा है, और बाय एयर तो ज़ाहिर है कोई अफोर्ड इतने ज़्यादा लोग नहीं कर सकते। तो वो अपनी बात नहीं कर रहे होंगे, वो तो आते रहते हैं और नज़र भी आते हैं, वो तो उस काबीना में भी मौजूद है। वो आम आवाम की बात कर रहे हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल है कि हर मंगल को कैसे आए। अगर वो हर मंगल को यहाँ पे होंगे तो फिर वैसे उनका भी यही कि वो अपने कारोबार पे कैसे तवज्जो देंगे, क्योंकि पहले भी बीमार बहुत रहे हैं, अब वो बीमारी के बाद ठीक हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो इस रेफरेंस से बात कर रहे होंगे, वो अपनी ज़ात के उससे नहीं बात कर रहे। ये बता दें कि आज हाईकोर्ट ने 20 तारीख आप लोगों को आखिरी दिया कि इसके बाद कोई चांस नहीं है। तो अपील, मैंने अपील सुनना चाहती है हाईकोर्ट, जो आप लोगों ने इस्तदा की कि खान साहब से डायरेक्शन ली जाए और जमानतों पर जो इस्तदा थी कि सुनी जाए, वो नहीं सुन रही। तो इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है इस केस में? देखिए मुझे बहुत ज़्यादा इस पर शकूक व शुबहात हैं कि दे हैव सम प्लान्स, क्योंकि अदालतें अब वो वाली अदालतें तो रह नहीं गई जो 26 और 27वीं से पहले थी। अब इन्होंने 28वीं भी करनी है तरमीम, तो सोच लें कि उसके बाद क्या हशर होगा। ये तमाम जजेस और चीफ जस्टिस और जितने लोग हैं इन सबको दूसरे दूसरे शहरों से ला के यहाँ पे उनको ओहदे दिए गए, जूनियर जजेस और जूनियर जजेस बहुत 13, 14, 16 इस तरह के उधर से, और जो यहाँ पे थे जिनको एक्चुअली बनना था वो बेचारे पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए सब के सब। तो अब इनसे सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि अपने ईमान के उसके ऊपर रहते हुए ये कुछ कर लें, अदरवाइज तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। जाहिर है जब इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, अगर कोई जज कोई ख़त लिख देगा या कुछ कह देगा कि मेरे साथ ये हुआ है या हो रहा है, तो फिर आप देख लें उनका क्या हशर होता है, उनको किस तरह उठा के फेंक दिया जाता है कहाँ से कहाँ। तो अब हिम्मत की कमी है सारी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो लोग हिम्मत से खड़े हैं उसमें एक हमारा सरदार इमरान खान है, उसके अलावा तो लोग हैं ही नहीं कि जिसको कहा जाए कि आप देख लें कि उनके इतने वकील, मेरे ख्याल में 23 वकील हैं लॉयर्स उसमें असम्बली में, लेकिन उसके बावजूद उनमें से हार्डली कोई नज़र आता है जो बात कर रहा हो। क्योंकि पहले तो ये था ना कि चलो बड़ी सी तकरीर कर ली, बड़ा खुश हो गए, लेकिन अब तो तकरीर भी नहीं करते, अब तो बात भी नहीं करते, नॉर्मलाइज कर दिया। बिल्कुल सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है। जेल में वो इंसान 1000 दिन से अंदर पड़ा हुआ है, कोई पूछता नहीं, हमें नहीं पता कि वो किस हालत में है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, क्योंकि कोई मिल नहीं रहा, ना अपना डॉक्टर मिल रहा है, ना अपना वकील मिल रहा है, ना एक बहन को मिला दो, पता तो चले कि क्या सिचुएशन है। उनकी ज़बानी सब पता चलता है या उनकी
بیگم کی بیٹیاں جاتی ہیں ملنے, وہ آ کے بتا دیتی ہیں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ ایوری تھنگ از سو سسپیشیس کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کی کیا حالات ہیں, کس طرح کے اس میں رات کے 2 بجے 4 بجے لے کے چلے جاتے ہیں ہاسپٹل اور پھر وہاں سے واپس لے کے آ جاتے ہیں, اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹروں کے اوپر اتنی پابندیاں ہیں, وہ کوئی بات نہیں کر سکتے. تو مجھے بتائیے کیا کس چیز کے اوپر اعتبار